Hi guys, this is Dhananjay here. I'm the CEO of Moksh, and we are going to just begin, talking about this journey of a doctor. Yeah. So, what are we going to talk today, and why? What is the objective of this webinar? What is this online counseling? Suddenly, a lot of people started going to abroad. कुछ हुआ ऐसा, कुछ reason आया. There was a reason why suddenly in 2019 lot of people started choosing abroad colleges instead of Indian private colleges. Are you aware about the new rules which have happened in to become a doctor? Your entire journey has changed because of change of rules to become a doctor from 2018. The rules have changed into 2019. ऐसा क्या change आ गया? So 2018, this is a very important aspect you must understand, and you should also talk to your parents. Okay, what happened in 2018 is, if you are becoming a doctor from India, any government, any private, any deemed university, when you get a degree, you can go to MCI and get a license directly. Once you get a license, you can practice and you can apply for PG. Without a license, you cannot practice, correct? So this is a practice license. But if you are coming from abroad, in 2018, the rule was you have to give for an examination. So a lot of students went between 2004 to 2018, and all of them gave FMG, Foreign Medical Graduate Examination, which works like a license examination, and if you qualify in this, then only you will get a license. So a lot of people were saying, I'll study in India, I don't want to take a risk, भले 60 lakh रुपया जाए, but I don't want to give a license examination. They were worried. In 2019, the rules changed completely. Whether you are coming from abroad, whether you are becoming a doctor from India, from government, from private, nothing matters. There is a common license examination for every doctor which becomes and who wants to practice in India. It is called National Exit Test. So FMG will be replaced by National Exit Test. Okay? And this National Exit Test, if you qualify, then only you will get a license. In 2019 rules changed. Even if अगर मैं 70 लाख रुपीस दे के भी इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में बैठा, I have to appear for the license examination, national exit test. If I qualify, I will get the license, then only I will practice, otherwise my 70 lakh gone. Understand this point. If I come in merit, I will directly get the PG. So one single examination replaces NEET PG to get a PG seat, replaces FMG to get the license for foreign returned doctors, and even introduces a new license examination for the students who are becoming MBBS from India. This is what is the biggest change that has happened in the journey of a doctor. Everybody has to now give a license examination on completion of your course, and you can see it on many internet publications how National Medical Commission, which is earlier called MCI, Medical Council of India, has changed the entire healthcare. These landmark changes have happened. They have been passed in the parliament, and now these have become rules for everybody to understand that if I want to become a doctor and if I want to practice, I have to appear for a license examination. I'm just going to try to, it's getting downloaded. It's going to take some time. But in the meanwhile, understand by the time it downloads, okay, this bill changes everything. A key provision of the bill aims to bring uniformity, whether you want to become a doctor in India or abroad, whether you want to do it in government or private. This bill changes everything for you, because uniformity has been brought between India and abroad. If you are studying in India, let's say, it seeks a common final year examination. पूरे इंडिया में एक कॉमन MBBS फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, दिस विल बी कॉल्ड नेक्स्ट.
national exit test, for getting admission to PG course and also obtaining practice license for foreign return students, so those who studied in foreign abroad universities, because every year more than 15,000 students go abroad. It's a parallel education which has been set. Huge number of students are choosing to go abroad because of the low cost. In India, it is so high cost that people do not want to study at private colleges. It proposes to do that first year MBBS examination, final year MBBS examination treated as an entrance test for PG and screening test for students who graduate in medicine from foreign medical colleges. So FMG replaced, NEET PG replaced, and introduction of a license examination for the Indian doctors who are passing from Indian private and government colleges. This is all done through one single examination. Ab, you can't have only degree because you want to practice. And if you want to practice, you need license. Otherwise, you will not be allowed to touch the patients. You will not be able to diagnose. You will not be able to prescribe any drug. You are not a doctor. You are nothing but like a compounder who has got a degree but no license. So you will have to pass this examination. In every country there is a license examination. Till now, India did not have it. Now it has got it. For example, in US there is a US MLE. So in India now it is next. In UK it is PLAB. So every country has a PG entrance and a license examination, which is mandatory for everybody to pass. For your information, in India it has been introduced from August 2019. Let me understand whether you have understood what I am trying to tell you. How important do you think that you must prepare for this examination? कितना dependency है आपका successful career के लिए? You can participate in the voting on your screen right now. If you have understood well, we will go progress quickly on to the next topic. So these are new things after NEET. What is going to work for you? We are going to design your entire career and place in front of you a kind of a trailer of the career. Okay? आज हम लोग आपकी करियर पहले से देख लेंगे कि कैसे जाने वाली है. 73% of the people have understood that, boss, there is no point in getting just the degree. You have to get the license and you have to prepare for the license examination. जैसे 11th plus 12th में आपने नीट की तैयारी की, वैसे MBBS के दौरान आपका एग्जिट एग्जाम का तैयारी होना चाहिए. 19 सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट से 5th ईयर के बीच में, वो सारे 19 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपकी लाइसेंस एग्जामिनेशन होती है. So whatever you learned in your first year, they will ask you questions in the end. Whatever you learned in the second year, again. So you need a constant review, you need a constant test, constant preparation for 5 continuous years. For every subject you will have to prepare. I think 73% of the people have understood that it's a mandatory thing to prepare for the national examination. However, 22% of the people feel maybe I have to check up. I don't know. Right now, I'm worried about MBBS. That's all fine. You don't have to start studying now. Only those people who will enter into MBBS are going to study about the license examination. आप इंडिया में लेते हो या अब्रॉड में लेते हो, कहाँ भी जाते हो, लाइसेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बिना तो कोई सेंसिबली है ही नहीं. तो आप 22% को मेरे को बताना है कि लाइसेंस एग्जाम तो पहले भी था, 2015 में भी था, 16 में भी था, 17 में भी था, 18 में भी था. जो फॉरेन से आते थे उस एग्जाम को FMG बोलते थे, MCI स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते थे, बराबर है. तो उसका देखते हैं क्या हो गया, उन लोगों का क्या हो गया जो हर साल जाते थे, हर साल आते थे, कितने लोग पास हुए. कैन यू बिलीव दिस? 15,000 doctors coming back every year to give examination. 15, 16, 17, 18. 4 years मतलब 60,000 doctors gave examination license के लिए. Out of this, only 14% passed, 86% failed. फेल हो गए तो क्या हो गया? घर में बैठो, स्टे एट होम. अभी कितना कंटाला आ रहा है घर में बैठ के. सोचो डॉक्टर बनने के बाद में
if you have got the degree but you cannot touch a patient, what would be the level of frustration that you will go through? And that is the level of frustration that more than 50,000 students are going through right now in India. After becoming a doctor, they are not able to clear the license examination because fundamentally they made two mistakes. One, they, like you, they said maybe. They did not prepare, they did not know कि करियर कैसे फॉर्म होगी, क्या मुझे आगे जाके जो एग्जाम आने वाली है उसकी तैयारी मुझे पहले से करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी सिखाया तो मेरे को 5वें साल में भी उसके ऊपर से सारे जवाब आने चाहिए, इसका भी एप्लीकेशंस मेरे को आना चाहिए। नेक्स्ट में मुझे पास तैयारी करनी है, निकलना है, लाइसेंस लेना है और मैं तो मेरिट में आऊंगा ताकि मेरे को पीजी का सीट मिले। एग्जाम तो यही है, तैयारी तो करनी पड़ेगी। So some people think that maybe I will prepare, that maybe has killed lot of people's career completely. And second problem which happened was, unfortunately, 450 medical universities which are approved on MCI. There are two types of colleges that MCI has approved, around 400 colleges which are extremely low quality. And there are 50 universities abroad which are very, very high quality. So if you see the MCI passing ratio from these universities, and if you see that students who have prepared for MCI right from the beginning, they all pass without any problem. But those people who have got from universities or colleges which are really bad, so Medical Council of India did one mistake, to be very frank. They have not given any distinctions between the universities. Okay, what they have done, colleges in abroad, they are easy to get in, so agents come into the picture, they show you some nice little dream into your mind and they push you to go abroad because already आपको मन में greed है, आपकी need है, आपका मन है, आपको कीड़ा है, डॉक्टर बनना ही है। अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अगर 450 में से 400 डस्टबिन वाला कॉलेजेस है और 50 टोटल हाई क्वालिटी कॉलेजेस है, तो आपको इसको कैसे आप बाइफरकेट करोगे? You really don't have any options, you don't have any knowledge, you have not been abroad. There are simple rules. Understand what MCI had made a mistake and you will be able to correct it within next 15 minutes. You will be able to say, sir, मेरा career हो गया पूरा, I'll become a doctor from a world ranked university and I'll go right up to post graduation without need of much of a money. I never did research. That is your problem, you never do research, so you never know facts. What you want, अच्छा YouTube देखो वो एजेंट क्या बोल रहा है, अरे यार बहुत अच्छा है ये तो, ऐसे वहां पे इतना ड्रीम वर्ल्ड है, बहुत खाना ऐसे खाते हैं, हॉस्टल ऐसा है, लाइफ ऐसी है, सिटी ऐसा है, वीडियोस, people coming to influence your mind. They'll say, Arey, come on, come in, come to Ukraine, come to Georgia, come to this, come to Kyrgyzstan. All these nonsense things will go on at YouTube and you are going to be influenced by that and you will not do your own research. In the next 15 minutes, I'm going to showcase to you some shocking things which when you do research, then only you will come to know. Otherwise, you will also become a part and parcel of that system which is set by the agents in India and who have been fooling the students of India left, right and center. Because it is a very low cost, there is no entrance examination, just get NEET qualified and go abroad and become a doctor. It's so simplified. NEET qualified कितना होता था? Last year 134 पे हो गया. So एक बाजू आप 550 के ऊपर की कोशिश कर रहे हो, दूसरी बाजू आपको है 134 में भी मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। तो मुझे क्यों इतना माथाफोड़ी लाइफ में करना है यार? मैं क्यों डर रहा था 2 साल से, क्यों इतना प्रेशर ले रहा था? आराम के साथ में एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में चला जाऊंगा। प्रॉब्लम है 90% खराब है अब्रॉड में, बढ़िया कहाँ है भैया? बढ़िया होता तो चाहूंगा मैं, ढूंढूं कैसे इसको? अब सिंपल सवाल पूछ रहा हूं आपको, आपके खुद के पैरामीटर सेट करो और अच्छे से अच्छी कंट्री में बेस्ट तरीके से आप डॉक्टर बन सकते हो, पीजी तक जा सकते हो। कैसे? सबसे पहला मेडिकल काउंसिल ने क्या किया है,
उन्होंने फालतू से फालतू कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री में भी MCI का अप्रूवल दिया है कॉलेजेस का। आपको उसमें नहीं जाना। क्या आप जाओगे पाकिस्तान? आप कतार जाओगे? आप किर्गिस्तान जाओगे? यार, आपसे जो कंट्रीज पीछे हैं उस कंट्री में जाके क्या आपको बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा? क्या आपको बेटर स्टडी एजुकेशन क्वालिटी मिलेगा? नहीं मिलेगा। You have to choose countries which are more developed than you. So you don't have to listen to those agents who say, oh, come on, go to Georgia, it's one of the best countries, it's in Europe. You find out yourself whether really it is in Europe, or is he fooling me? Because most of the agents, what they try to do is somehow वो आपको फॉरेन भेजेंगे तो उसको पैसा मिलेगा, तो उनका नजर आपके जेब के ऊपर है, उनका नजर आपकी करियर के ऊपर नहीं है। ठीक है? सो आपकी खुद की नजर अपनी करियर पे रखनी पड़ेगी। आई एम गोइंग टू शोकेस टू यू, देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स which if you see, they are from government of India, which if you do the research, like World Directory of Medical Schools, nobody ever can fool you. No agent there, you don't need an agent. Actually, there is no need of an agent, to be very frank. Why do you need an agent? You need a career planner. You need to plan your career properly. आपको एडमिशन के लिए किसी की जरूरत नहीं है बॉस। ठीक है? You need correct solution for license examination, which we already saw. डेवलप्ड कंट्री में टॉप यूनिवर्सिटी। नाउ यूनिवर्सिटी MCI में कैसा है? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी है, प्राइवेट भी है, 100-200 साल पुरानी भी है जिसको पूरा एक्सपीरियंस है डॉक्टर बनाने का, और 5-6 साल पुरानी जिसको कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है, 1 साल पुरानी। ऐसे नई नई प्राइवेट कॉलेजेस भी है। इंग्लिश में सिखाने वाली कॉलेज भी है, रशियन में सिखाने वाली कॉलेज भी है। सेफ जोन में है, कोई तो डेंजर जोन में है, वॉर जोन में है। ऐसा आपके पास अलग अलग यूनिवर्सिटी का। आपको क्या लग रहा है? Where do you think, which type of university are you going to select if you have to go? Will you select government college or will you select a नया private college? आपके सामने ये सवाल है। इसमें आएंगे, ऐसे भी नमूने आते हैं जो एजेंट होते हैं हमारे वेबिनार पे, वो बेचारे सीखते हैं हमसे और वो सोचते हैं कि धनंजय सर क्या बोल रहे हैं, कैसे बच्चों को बात कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में कैसे मैं बच्चों को उल्लू बनाऊं, ऐसा वाला कौन है? तो ऐसा जवाब दे देते हैं, कुछ भी चलेगा सर, मुझे कचरे में डाल दो, बस मुझे डॉक्टर बना दो, एनीथिंग विल डू। इससे आगे वाले सवाल में भी देखा था ना आपने, बोला सर लाइसेंस की जरूरत क्या है, डिग्री दिला दो, बात खत्म। ये सारे एजेंट होते हैं। ये एजेंट क्या करते हैं? आपको 93% of those who are serious students have understood कि बस मुझे किसमें जाना है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए। 7% क्या बोलते हैं? भाई एनीथिंग विल डू, क्या जरूरत है, किसी में भी डाल दो सर। ये वाले होते। फेक यूट्यूब पे आप लोगों को आदत है यूट्यूब पे जाने की, MBBS अब्रॉड ढूंढने की, सर इंडिया में नहीं मिल रहा है, डिप्रेस हूँ, क्या करूँ, 550 नहीं आ रहा है, मैंने कोशिश की, क्या करूँ, सर तीसरा अटेम्प्ट है, मेरे को डॉक्टर ही बनना है, मैं कुछ और कर ही नहीं सकता लाइफ में, क्या करूँ? ये सारे बच्चों को उल्लू बना के यहाँ से उल्लू बनना चालू होते हो। या छोटे छोटे एजेंट आपके गांव में, शहर में, नेबर में, ये बहुत बड़ा डेंजर चीज है। अगर कोई, मैंने पहले ही बताया, कोई बच्चा गलत कंट्री जैसे किर्गिस्तान चला गया, या कोई बच्चा जॉर्जिया चला गया जहां पे नहीं जाना चाहिए था, करेक्ट है? इतना बकवास कंट्री है कि यहाँ पे इंडिया का एक एम्बेसी भी नहीं है। ऐसी बहुत कम कंट्रीज है जहां पे इंडिया का एम्बेसी नहीं होता। आप ढूंढ लेना, गूगल करेंगे तो। जो मोस्ट इनसिग्निफिकेंट कंट्रीज होते हैं ना, वहीं पे अपना इंडिया का एम्बेसी नहीं होता। ये जॉर्जिया उसमें से एक है। ऐसे कंट्री को आप, एजेंट क्या बोलता है, यूरोपियन यूनियन में है, यूरोप में पढ़ोगे, वहीं पे सेटल हो जाओगे, ये सब बकवास करके आपको रिसर्च करोगे तो सामने दिखेगा
इंडियन गवर्नमेंट ने लिख के दिया है कि भाई ये ऐसे उल्लू बनाएंगे, मत सुनना। अब समझो कोई स्टूडेंट चला गया जॉर्जिया 2019 में, वहां जाके समझ में आ गया कि यार ये तो प्राइवेट कॉलेज है, उल्लू बन गया मैं, अब क्या करूं? तो वो क्या बनेगा? वो समझ गया डॉक्टर तो मैं बन नहीं सकता, इतनी घटिया कॉलेज है, क्योंकि वापस आके लाइसेंस एग्जाम पास करना है। इससे अच्छा एजेंट बन जाओ, चुपचाप दूसरे बच्चों में प्रमोट करो, उनको बोलो कि बहुत मैं संभाल लूंगा, आपको टेंशन मत लेना। ऐसे ही 2020 में आप उनके शिकार बनोगे और 2021 में आप एजेंट बनोगे और आप किसी और शिकार को। ऐसे ही चलता रहा है, ठीक है। यूपी और बिहार में किर्गिस्तान ऐसे ही बिकता रहा है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है। मैं जाने के पहले अगर मैं मेरा पैरामीटर सेट करता हूं कि भाई मुझे सिर्फ गवर्नमेंट में जाना है, मुझे एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी चाहिए और मुझे इंग्लिश में सिखाने वाली कॉलेज चाहिए, मुझे एमडी तक जाना है, ऐसा प्रोग्राम दो, मुझे सिर्फ एमबीबीएस पे अपनी करियर खत्म नहीं करनी है। प्रॉपर प्लान करके प्रॉपर लाइसेंस लेके तैयारी करके अच्छे से अच्छी कॉलेज में एमबीबीएस करना है। तो एक सिंपल सा हिसाब है, आपके सामने मैं बताता हूँ। गूगल डालो और आप वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स ढूंढ सकते हो। पूरे दुनिया की इतनी मेडिकल कॉलेजेस हैं, सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस इसके मोर और लेस लिस्टेड है। कॉन्स्टेंटली अपडेटेड डायरेक्टरी है। आपको कोई भी मेडिकल कॉलेज के बारे में अगर जानकारी चाहिए, भाई ये गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट है, इसको कितना एक्सपीरियंस है, क्या ये सिखा पाएगी मेरे को, या मेरे को वहां जाके एजेंट बनने वाला हूँ। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ, करेक्ट। आप कोई भी कंट्री पकड़ लो, समझो यूक्रेन पकड़ते हैं, जहां सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं वो है यूक्रेन। पहले रशिया था, अब यूक्रेन है। यूक्रेन में देखो आप कैसे रिसर्च कर सकते हो। आपने किसी का ये देख लिया, क्या बोलते हैं, वीडियो देख लिया और आप इम्प्रेस हो गए, या किसी स्टूडेंट को लेके आए वीडियो में, देखो कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। समझो एक तरास करके यूनिवर्सिटी है जो वहां की टॉप कॉलेज है, ऐसा वीडियो में बोलता है वो। तरास शेवचेंको यूक्रेन में मैंने यहाँ ढूंढा, भैया ये यूनिवर्सिटी 200 साल पुरानी क्यों ना हो, मुझे ये बताओ कि इसको खुद को मेडिसिन सिखाने का एक्सपीरियंस कितना है। जब तक मुझे वो नहीं समझेगा, मुझे नहीं जाना इस यूनिवर्सिटी। अगर इसको 2 साल पहले ही मेडिसिन का कोर्स चला हो, ऐसी कॉलेज में भले 5,000 साल पुरानी क्यों ना हो कॉलेज, पर मेडिसिन तो 2 ही साल पहले चालू किया है। सबकी कुंडली, सभी यूनिवर्सिटीज की दुनिया भर की कुंडली यहाँ पे मिल जाती है। यू कैन सर्च, यू कैन डू योर रिसर्च, यू कैन टेक योर ओन डिसीजन ऑन वन सिंगल दिस वन एंड इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स। किसी भी फालतू यूट्यूब के सुन के आप यूक्रेन में, यही यूक्रेन में आप बोलोगे सर चलो वो तो 2 साल पुरानी है, वो तो जिंदगी में नहीं जाऊंगा। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जो 100 साल पुरानी है, आपके सामने है। आप खुद ही यूनिवर्सिटी को फाइनल कर सकते हो। 125 साल पुरानी ये भी यूनिवर्सिटी 234 साल पुरानी है, बट एमबीबीएस करीबन 125 साल से चल रहा है। अब इसका क्वालिटी 2 साल पहले जो कॉलेज बना था उसके क्वालिटी में आसमान जमीन का फर्क है। ऐसा तो आप हर कंट्री के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए आप सोच सकते हो। तो आपको ऐसे फालतू वीडियोस दिखेंगे जो प्रमोट करेंगे 2 साल के एक्सपीरियंस वाले यूनिवर्सिटी, चाहे यूक्रेन हो चाहे वो जॉर्जिया हो। आप यू कैन फाइंड आउट what is the experience, whether the university, for example मैं मुंबई से हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर 2019 में we came to know there were some around 150 people who had gone to this university by one agent in Kolhapur. They wrongly committed Georgian MBBS Georgia
and you will do PG in America. Students were excited. They paid 3 lakh rupees. They went there. They said world-class university. This happened to be a third-class university. Private college, 1 year back it has opened. No infrastructure, no hostel, nothing over there. No lectures being taken for 6 months. Those students have now filed a criminal case against that fellow. He has returned every penny that, but the students का एक साल चला गया. If they had done research on their own, they would have understood this is all fakeology. YouTube पे आके उल्लू बनाने वाले धंधे हैं. जब तक मैं नहीं खुद का रिसर्च करूंगा, तब तक मैं कभी भी दूसरा आदमी आके उल्लू बना जाएगा और मेरा पैसा लूट के जाएगा, क्योंकि उनका बिजनेस है. ये आपकी बेसिक जिम्मेवारी है कि इतने सीरियस मेडिसिन जैसे हेल्थ केयर जैसे प्रोफेशन में जाने की कोशिश कर रहे हो, आपको पूरा जर्नी पता होना चाहिए, इंडिया का भी और अब्रॉड का भी. अब्रॉड इज अ पैरेलल एजुकेशन. जितने इंडिया में ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स गवर्नमेंट में सीट लेते हैं, करीब करीब 15 से 16 हजार लेते हैं, उतने ही स्टूडेंट अभी फॉरेन जा रहे हैं. प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि जाने वाले अच्छी जगह चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होती. इनको भेजने के लिए एजेंट गलत गलत जगह पे. मैं एक सवाल पूछता हूँ मैं आपको. आपने सुना होगा बहुत स्टूडेंट्स जाते हैं, कोई रशिया जाता है, कोई यूक्रेन जाता है, बराबर है, कोई बेलारूस जाता है, कोई यूएस जाता है, कोई जॉर्जिया. आपको अगर 550 न आए नीट के अंदर, 98% को तो नहीं आने वाला है. तो अगर आपके मदर फादर ने बोला कि चलो सोचते हैं, तुझे डॉक्टर बनना है, हम आगे सोचते हैं, वेयर विल यू थिंक टू गो? आपको अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शौक लगना चालू होने वाला है, तो तैयारी रखो. बहुत ध्यान से सुनो और बहुत ध्यान से सोचना. अब जो मैं बताने वाला हूं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड कि सर हमको ये पता ही नहीं था कि रशिया में, हमको पता है सालों से हम सुन रहे हैं कि बच्चे रशिया जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंडिया आते हैं. तो हमने सुना था, मेरे गांव से भी गया था, मेरा सीनियर भी गया था, बराबर है. 41% रशिया. अब मैं आपको बताना चाहूंगा टू एवरीबॉडी. चलो 41% यूएस है, आई कैन अंडरस्टैंड. यूएस में क्या है, फायदा है कि जब आप पीजी करते हो तब आपको 1.5 करोड़ रुपया आपको मिलता है स्टाइपेंड. जैसे इंडिया में जब पीजी करते हो तो आपको 1.5 करोड़ का खर्चा आता है. स्पेंड इधर अर्न. सबको यूएसएमएल दे के यूएस जाना होता है, वो स्टैंडर्ड है. आई कैन अंडरस्टैंड 41% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव चोजन यूएस. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. पीपल नो दीज थिंग्स, दीज आर मोस्ट बेसिक थिंग्स. नाउ 41% ऑफ students are saying we will choose Russia. So let us see what government of India is saying about the medical education in Russia. आपको बहुत एजेंट मिलेंगे जो प्रमोट करके आपको बोलेंगे रशिया में इस कॉलेज में जाओ, उस कॉलेज में जाओ. तो आप कहां से अपनी इंफॉर्मेशन करोगे? इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को, रशिया. वो क्या स्टूडेंट को एडवाइजरी दे रही है, वो तो गूगल करो पहले. सबसे पहला क्लिक करो. गवर्नमेंट की वेबसाइट है, एम्बेसी है, उसका काम है हमको प्रोटेक्ट करना. तो इसी हिसाब से अगर वो हमको क्या बोल रहे हैं, क्या अच्छी सी एडवाइस दे रहे हैं, हम किसी फालतू एजेंट की बात नहीं सुनने वाले. हमको हमारा रिसर्च करने को भगवान ने अक्ल दिया है. छोटे मोटे एजेंट या यूट्यूब पे उल्लू बनाने वाले एजेंट की सुनेंगे. We are going to listen to the government of India. Embassy, what are they saying? Let us see medium of instruction and other problems. I'm just clicking over here. It is right in front of you. What is this problem? Now be ready for your shock. 41% says US understood. 41% says Russia. Let's see what are you going to get over there in Russia. There is a publicity in India. पब्लिसिटी मतलब पता है ना, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशंस, फेसबुक, यूट्यूब, जो आप देखते रहते हो, क्लिक करते हो और क्लिक करने के बाद में अपनी करियर को खत्म करते हो.
English medium courses in medicine in Russia, but this is not correct. ये पब्लिसिटी है, बट ये एक्चुअल सच्चाई नहीं है. मीडियम ऑफ एजुकेशन इन रशियन इंस्टीट्यूशन इज मोस्टली लोकल लैंग्वेज. ये तो बड़ा टेंशन वाला बात है भाई. आप मुझे रशिया में रशियन में सिखाओगे, फिर मैं इंडिया आऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट दूंगा, मैं पास कर पाऊंगा कभी जिंदगी में? I had told you right from the beginning, two reasons why those 50,000 doctors are stuck in their life, why only 14% of the students are able to pass license examination. Because right from the beginning, आपने अपना पहला कदम एजेंट के भरोसे पे गलत कंट्री में डाला है. उस कंट्री में गलत यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो. कंट्री एंड यूनिवर्सिटी. और दूसरा रीजन मैंने बताया था, लाइसेंस एग्जामिनेशन की तैयारी. बस अगर ये दो चीज को सुधार लो तो आपको अभी कोई नहीं रोक सकता पीजी तक जाने के. क्योंकि रशिया के अंदर पढ़ो, मोस्ट इंस्टीट्यूशंस ट्राई टू टीच यू फर्स्ट 3 years इन इंग्लिश, फ्रॉम 4th year स्टडी इन द रशियन लैंग्वेज. बोल्ड में क्या लिखा है देखो, स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ड्यूअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. हजारों लोग जा गए, 8 से 10 हजार लोग अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं रशिया के अंदर. हालत इतनी गंभीर है कि जाने के पहले एजेंट ने ये सब बताया नहीं, गाइडेंस दिया नहीं, आपने रिसर्च किया नहीं, डेस्परेसी के लेवल में पैसा लेके बैठ गए, उसने आपको चूना लगा दिया. हमने एम्बेसी को पूछा, सर ऐसे कैसे हो सकता? इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज है, हर बच्चे का मेहनत, पेरेंट्स का मेहनत का पैसा है. हाउ कैन यू नॉट इन्फॉर्म द स्टूडेंट सो इजीली? बिकॉज एक बाजू मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, दे आर अप्रूविंग द कॉलेजेस, तो इसीलिए स्टूडेंट्स जा रहे हैं. और दूसरी बाजू आप एम्बेसी ऑफ इंडिया लिख रही है कि भाई यहाँ पे इंग्लिश में नहीं सिखाएंगे. हमने पूछा सर इसका सोल्यूशन निकालो. हद हो गई, हजारों स्टूडेंट को उल्लू बन गए एजेंट के बाद. फाइनली in 2019 they came up with a new page on which they said we will give you ratings of the institutions in Russian medical system. हर एक MCI अप्रूव्ड कॉलेज जो है रशिया के अंदर, उसको हम लोग रेटिंग करेंगे, और जो टॉप वाली रेटिंग है उसी में जाओ, बॉटम वाले में जाओगे तो आप फंस जाओगे. लेट्स स्टार्ट डाउनलोडिंग द रेटिंग लिस्ट ऑफ रशियन मेडिकल कॉलेजेस इन इंडियन एम्बेसीज लिस्ट. अगर मैं इसको डाउनलोड करता हूं, आपके सामने है. एक टाइम आएगा, अगर कई बच्चे ऐसे होंगे कि जो अब्रॉड जाने के लिए तैयारी होंगे, और सामने कोई एजेंट आएगा और बोलेगा यार मैं रशिया भेजता हूँ, ये सब नहीं बताएगा तभी हम रहेंगे या नहीं आपके सामने याद नहीं, बट इतना अभी से याद कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर के अंदर एक लिस्ट दिया हुआ है जिसमें हर कॉलेज को लिस्ट रेटिंग दिया हुआ है. सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर दूसरा लिस्ट दिया हुआ है, हर एक कॉलेज को रेटिंग दिया हुआ है. अब आपको देखना है, ठीक है, कि आपको अगर टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी में जाना है तो आप सिलेक्ट करो. अगर आपको फालतू रशियन में सिखाने वाली बॉटम रेटेड यूनिवर्सिटी में जाना है तो वो भी आपकी मर्जी. यू ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड, 50 में से टॉप 10 पकड़ लो. इसमें से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर में से बोलते हैं टॉप 4 ले लो, उससे नीचे मत जाओ. उससे नीचे आपको प्रमोशन बहुत होगा, एडवर्टाइजमेंट्स होगी, पर आपको छुपा हुआ ये सब रिसर्च नहीं करोगे तो 100% फंसने वाले हो. कैसे फंसोगे? आपको अगर समझो ये एक आ गया, उसने प्रमोशन कर दिया या इसने प्रमोशन कर दिया, अब क्या करोगे? अगर इसने प्रमोशन किया, आप YouTube पे जाओगे ना, तभी टाइप करना त्वेर मेडिकल यूनिवर्सिटी फ्रॉड फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, और सुनो, एक एक बच्चा सुनाएगा आपको उसमें कि कितने फ्रॉड हुए हैं बच्चों के साथ.
पर्म फुल्ली रशियन टॉट प्रोग्राम, फंस गए पूरे के पूरे। सो आपको लोअर में जाना है तो फंसने की तैयारी करो, पैसा मत देखना। नहीं तो बोलेंगे 15 लाख है, अच्छा 15 लाख में मैं करवा दूंगा, एमसीआई अप्रूव्ड कॉलेज है, बिंदास चले जाओ। अब वो भी 15 लाख भी वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो रशियन में सिखाएगा, ब्लैंक जाओगे ब्लैंक आओगे। ठीक है, मेरा सजेशन ये रहेगा, आप इससे नीचे मत जाओ। आप पिरोगो में जाओ, आप कजान में जाओ, आप पावलो में जाओ, आप सचिनो में जाओ, इसका खर्चा बहुत है, नॉट वर्थ 50 लाख। सेंट पीटर्सबर्ग ऑलमोस्ट 40 लाख, नॉट वर्थ। पिरोगो करीबन 28 लाख, फैंटास्टिक, इट्स इन मॉस्को। कजान सुपर वैल्यू फॉर मनी 22 lakhs, इट्स सो सिंपल। अगर आप दूसरा मिनिस्ट्री देखोगे, वापस वही टॉप 4 ले लो, और उसमें हाईएस्ट रेटेड क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी, हाईएस्ट एमसीआई पासिंग रेशियो। मैं अभी जाऊंगा रशिया तो इसको क्रॉस करूंगा, टॉप वाली 6-7, और उसको भी एक एक कॉलेज को मैं चेक करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कजान फेडरल यूनिवर्सिटी का बहुत फेकू वीडियोस दिखेगा, टोटल फेकू। 1804 की यूनिवर्सिटी है। अब आपको पता है कि चाहे कोई कितना भी बोले, मैं डायरेक्टरी में जाके मेडिसिन कब से शुरू हुआ वो मैं चेक कर सकता हूं। अगर वो 100 साल पुराना है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मुझे नहीं जाना उसमें, फालतू 2-5 साल 10 साल एक्सपीरियंस वाली कॉलेज में जाके कोई फायदा नहीं। सो जब मैंने कजान सर्च किया तो मुझे 2 दिखाई दिया, कजान स्टेट और कजान फेडरल। आप देख रहे हो कजान फेडरल आपको यहाँ पे दिख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में 3rd पे आ रहा है, तो ठीक होना चाहिए। तो एक्चुअल में ये 1804 का कॉलेज है, बहुत ही हाईली रेटेड यूनिवर्सिटी है। प्रॉब्लम ये की है, मेडिसिन सिखाया है क्या इन लोगों ने, फेडरल वालों ने मेडिसिन सिखाया? तब मैंने ढूंढा, रिसर्च किया, तो मुझे पता चला ये वीडियो वाले एजेंट तो सारे सारे बकवास हैं। भाई 6 साल पहले एक मेडिकल कॉलेज खुली हो और 125 साल पहले एक मेडिकल कॉलेज खुली हो, कितना फर्क रहेगा मुझे बताओ। क्योंकि जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज पुरानी होते जाती है, उसकी अफिलिएशंस हॉस्पिटल्स के साथ में बढ़ते जाती है, उसका एक्सपीरियंस आगे के स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए बहुत बढ़िया है। तो अगर कजान जाना है तो मैं कजान स्टेट ही जाऊंगा, मैं फेडरल नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसको सिर्फ 6 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं जाना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ दैट देयर इज अ सिंपल मेथोडोलॉजी टू फाइंड आउट। आपको बहुत फेकू वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे, आप हंसते हंसते सुनते रहना, रिसर्च अपने हिसाब से करना, डिसीजन अपना लेना। किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है, आपको मोक्ष में फोन कर सकते हो, पूछ लो सर इसका मेरे को लिंक भेज दो, आपको ऐसे ही कोई न्यूट्रल गवर्नमेंट की लिंक भेज देंगे, आप खुद ही रिसर्च करके फाइनल कर लो। ये तरीका होता है अपने काउंसलिंग का। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मैं आपको बोलता हूँ मोनिका, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन गो, हिंदी मीडियम इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो अरुण कुमार, द लिस्ट इज एज पर द एम्बेसी का रेटिंग लिस्ट देख लो, जो इंग्लिश में मिलेगा, टॉप कॉलेज यू विल गेट इट ऑन द in the English ones, and bottom ones will be in Russian ones. So you can find out on the government website, it is given 100%, you can see it. Guys, अब समझ में आ रहा है, कितने फ्रेंड्स आपके गए होंगे, कितने सीनियर्स गए होंगे, 41% रशिया बोलते थे, अब मैं आपको बताता हूँ 3% बोल रहे हैं जॉर्जिया। ये 100% वो एजेंट हैं जो बोल रहे थे हमको कि सर मुझे कुछ भी चलेगा, एनीथिंग विल डू, मुझे डिग्री भी नहीं चाहिए, मुझे लाइसेंस, मुझे डिग्री चाहिए, मुझे लाइसेंस भी नहीं चाहिए, और अभी बोल रहे हैं सर मुझे जॉर्जिया जाना है। तो हम बोलते हैं ठीक है, आपको जॉर्जिया भेज देते हैं, पहले एडवाइजरी तो पढ़ लें, जॉर्जिया जाना है ना, तो अपना तो बेसिकली रिक्वायरमेंट है कि गवर्नमेंट क्या एडवाइस दे रही है वो पहले सुनना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं एडवाइजरी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स विशिंग टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी आर्मेनिया एंड जॉर्जिया, क्लिक करता हूं मैं, और अगर यहाँ पे देखता हूँ
तो ये तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, क्या लिखा है, अब मैं इसको असेस करूंगा। आर्मेनिया एंड जॉर्जिया आर नॉट, कैपिटल में लिखा है पार्ट ऑफ यूरोप। ये एक फालतू रशिया में से कटी हुई छोटी सी कंट्री है जिसका अंदर इंडिया का एम्बेसी भी नहीं है, वो है जॉर्जिया। इसका पूरा कंट्री का पॉपुलेशन है 37 lakhs। यहाँ पे क्या आपको हॉस्पिटल्स मिलेगी, क्या पेशेंट्स मिलेंगे, क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, और आपको कॉलेज कैसी मिलेगी, हम लोग ने तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कॉलेजेस कैसी मिलेगी, देखा आपने? आपको मैं बताता हूँ, अब जॉर्जिया ढूंढो, you can find out and you can come to know that what are the type of colleges that you can get out of Georgia. You can do any colleges that you wish to, okay? For example, मैंने यूरोपियन, जॉर्जियन नेशनल, कोई भी निकालो, 97% of the colleges are private, small scale colleges. Would you ever like to go for such universities? Tell me. Or would you rather go for a government college or a university which is existing for 100+ years and they have full experience to teach you? तो ऐसे फालतू जॉर्जिया के अंदर एज अ कंट्री पीछे किसी को इंग्लिश नहीं आती, एज अ पॉपुलेशन नहीं है, तो मतलब पेशेंट्स फ्लो नहीं है, और यूनिवर्सिटी सारी नई नई 2-4 साल 5 साल पुरानी कॉलेजेस हैं, तो इसमें क्या आप जाना चाहोगे? एक यूनिवर्सिटी जो महाराष्ट्र में बहुत चलती थी, न्यू विजन, हमने काफी प्रमोशन करके बच्चों को एक्चुअल में क्लियर किया कि आपको मिलेगा क्या यहाँ पे, डू यू रियली वांट टू गो हियर? ये ऐसे फंसाते हैं। तो आपको कोई भी बंदा बने, तो इससे क्या पता चलता है कि जो आपको, जिसको आप देख रहे हो यूट्यूब पे, क्या वो सही है या क्या आपको वो उल्लू बना रहा है, क्या आपको सही जगह पे करियर का गाइडेंस दे रहा है या आपकी जेब में से पैसा निकाल के आपको फालतू कॉलेज में भेज रहा है। These are the things that you come to know on your own. That is the day you can be safe enough to go anywhere you wish to. Okay? मैं आपको finally, before I leave, I'm going to showcase to you how your entire life is going to look like. Before I explain you the last slide, tell me, आपका बजट मुझे पता होगा तो मैं आपका अगला 10 साल बता सकता हूं कैसे होंगे, आप कहां पे सेटल होंगे, आप कहां तक पहुंच सकते हो उस बजट में, आप मुझे बताओ, आराम से सोच के बताओ। नहीं पता है तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जो लगता है वो डालो ताकि आपको अपनी करियर सामने दिखना चालू हो जाए। Yeah guys, everybody has polled. Let me see, 73% says 20 to 30 and 23% 30 to 40, 4% says 70-80 lakhs के ऊपर है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, जिसका बजट 20 से 30 लाख रुपया है, 12th में हो, नीट क्वालिफाई करो, आपको क्या तो इंडिया में एमबीबीएस करोगे या अब्रॉड में करोगे, यही दो जगह पे करोगे, कोई तो एक जगह पे। 550 से ऊपर आया तो इंडिया में होगा, 550 से नीचे गए तो अब्रॉड में जाओगे, दोनों में आखिर अपने को पीजी तक पहुंचना ही है। प्रोसेस दोनों के लिए एक ही है, चाहे आप इंडिया में जाओ, यूएस में जाओ या जर्मनी में जाओ, ये तीनों के लिए आपको जो लाइसेंस एग्जामिनेशन का तैयारी है वो मोक्ष कराएगा। इमेजिन यू आर 23-year-old डॉक्टर and you are earning 40 lakh rupees per year in US and you are also doing your PG at the same time. 23% are going to do this. आप जितना चिराग सर को सवाल पूछ के इसके बारे में जानकारी ले सको ले लो, आपको पूरा लाइफ चेंजिंग वेबिनार बन सकता है ये, ठीक है? So this is what we are aiming to do with everybody, and those who have higher budget, they can speak with me directly, so we can do that separately.